মায়াতে মন মগন হইল মায়াতে আর বসে না পেতে গলে মায়া সে পি সাচি মায়া সে পি আর বলে দিতে ফিরে মায়া সে পি সাচি করিয়া যায় শরণ মায়া রে করিয়া যায় শরণ সাধু গুরু পাবিনা নাহি কোন সাধু গুরু বিনা নাহি কোনু সাধু গুরু বিনা নাহি কোনু সাধু গুরু দশী প্রভু পতিত উদ্ধার করহনি প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর শিবসাদী গৌর ভক্ত বৃন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈত ওরে মনে কহ না গৌর কথা ওরে মন
গৌর কথা ওরে মন গহনা গৌর কথা ওরে গৌর নাম অমিয়া ধাম গৌরের নাম অমিয়ার ওরে গৌর নাম অমিয়া ধাম গৌরের নাম অমিয়ার ধাম ওরে ফিরেছি মূরতি দাতা ফিরেছি মূরতি দাতা আর গৌরের নাম অমিয়ার ধাম প্রীতি মুরতি দাতা ওরে মনে কহো না গৌর কথা আর গহনা গৌর কথা শয়নে গৌর স্বপনে গৌর শয়নে গৌর স্বপনে গৌর শয়নে গৌর স্বপনে গৌর স্বপনে গৌর স্বপনে গৌর হরি গৌর নয়ন তারা গৌর নয়নের তারা গৌর নয়ন তারা হরি গৌর নয়নের তারা আমার জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর কালারি হারা আর জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর নয়নের তারা জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর কলারি হারা গৌর মরণে গৌর গৌর তারা জীবনে গৌর আমার নয়ন তারা গৌর আমার নয়নের তারা গৌর আমার নয়ন তারা গৌর আমার নয়নের তারা গৌর আমার গলার মালা গৌর আমার নয়ন তারা আর গৌর আমার গলার হারা গৌর আমার নয়নের তারা গৌর আমার গলার মালা গৌর আমার নয়ন তারা আমার গলার মালা গৌর গৌর গলারি হারা গৌর গলারি হারা ইয়ারে ইয়ারো মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়ে यार माझरे गौरंग राखिए ইয়ারো মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়ে यार माझरे गौरंग राखिए আমি বিরলে বসিয়া রব বিরলে বসিয়া রব বিরলে বসিয়া রব বিরলে বসিয়া রব মনের সাথে সেরু
নয়নে নয়নে ও মনের সাথে সেরূপ সাথে নয়নে নয়নে আমার সাথে রূপ জানে রে নয়নে নয়নে তো গৌরবিহনে নাবাচি গোরাধে আর গৌর বিহনে নবাচি পরাণে গৌর করেছি আর গৌর করেছি গৌর বলিয়া পরম যাও গৌর বলিয়া পরাণ যাও গো। গৌর বলিয়া পরম যাও গৌর বলিয়া পরাণ যাও গো। কিছু না চাহিয়ে কিছু না চাহিব গৌর বলিতে বলিতে মরিতে পারি আর বলিতে বলিতে মরিতে চাহি গৌর বলিতে বলিতে মরিতে পারি বলিতে বলিতে মরিতে পারি আমার প্রাণ হরি হরি বল। কালে যেন গৌর বলিতে বলিতে মরিতে পারি আমার প্রাণ যাওয়ার পালে বলিতে বলিতে মরিতে পারি নাম ছাড়া যায় না পরাণ বলিতে বলিতে গৌর মরিতে পারি নাম ছাড়া যায় না প্রাণ বলিতে 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 পারি নাম ছাড়া যায় না পরাণ বলিতে 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 মরিতে পারি গৌর বলিয়া পরানো যাউক কিছু না চাহিয়ে বলিয়া পড়ানো যাও গো কিছু না চাহিব গৌর কামন গৌর গঠন গৌর গমন গৌর গঠন গৌর গঠন গৌর গমন গৌর গঠন গৌর মুখের হাসি আমার গৌর মুখের হাসি গৌর প্রীতি গৌর আরতি গৌর প্রীতি গৌর মরতি আর মরমে রহিল বসি গৌর করিলে আর গৌর চরণে পরাণ সপিল গৌর করিবেন গৌর ভগত গৌর কথন গৌর শপথ গৌর সম্পদ গৌর শপথ গৌর সম্পদ গৌর শপথ গৌর সম্পদ গৌর শপথ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে আর যাহার হৃদয়ে জাগে যাহার হৃদয়ে জাগে আর যাহার হৃদয়ে জাগে নর হরিদাস অনুগত করে নর হরিদাস নর হরিদাস অনুগত করে হরিদাস চরণে শরণ মাগে আর চরণে শরণ মাগে হরিদাস অনুগত করে নর হরিদাস আর চরণে শরণ মাগে সচিদানন্দ জয় গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কি হলো এটাতে? হরি বল, হরে কৃষ্ণ। শুনতে পাচ্ছেন সকলে? হরি বল, শুনতে পাচ্ছেন? হাত তুলুন। আচ্ছা, আমরা এখন যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, সুবর্ণ বিহার, সুন্দর সোনার, सुवर्ण वाला सोना। सत्ययुग एक राजा छिलेन, सत्ययुग में एक राजा थे, यहीं पे नाम थे सुवर्ण विहार। इतना इतना लालची वाला राजा, राजा सब लालची होता, राजार लोग प्रचुर থাকে सब समय, जानबेन। तो बुढ़ापन आ गया, तब भी राज्य को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा, और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सब चाहिए। जिस प्रकार देखो चैतन्य महाप्रभु क्या किया, चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र को रोक दिया, नहीं, राज दर्शन सन्यासी का, सन्यासी के लिए ठीक नहीं, ये बताया। इस प्रकार भी ऐसा ही राजा का स्वभाव, राजा का स्वभाव देख के महाप्रभु हम लोगों को ऐसा आदेश दिया, सन्यासी होते हुए राजा के साथ संग मत करो। इसलिए प्रताप रुद्र को रोक दिया था। तो जो भी हो, यहीं पे नारद मुनि क्या किया, राजा सुवर्ण सेन का बुढ़ापन आ गया, तब भी उनका इतना लालच, जे राज को बढ़ाना चाहिए, राजकोष को बढ़ाना चाहिए, सब कुछ बढ़ाना चाहिए। तो नारद मुनि आकर के, नारद वैष्णव का कृपा से क्या होता, हमारा पूरा लालच चला जाता। वैष्णव का कृपा से भौतिक लालच सब चला जाता, बिल्कुल रूप चला जाता। तो ही हुआ, देखो क्या हुआ। সত্য যুগে এই স্থানে ছিল রাজা এক, সবে জানে, শ্রী সুবর্ণ সেন তার নাম। বহুকাল রাজ্য কইল, পরেতে বার্ধক্য হইল, তবু নাহি কার্যেতে বিশ্রাম। বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বৃত্ত, এই চিন্তা করে নরবর। কি জানে কি ভাগ্য বসে, সে নারদ তথা আইসে, রাজা তার পুজিল বিস্তর। সুবর্ণ সেনের প্রতি নারদের উপদেশ, নারদের দয়া হইল, তত্ত্ব উপদেশ কইল, রাজারে তো লইয়া নির্জনে। নারদ কহেন রায়, বৃথা তব দিন যায়, অর্থ চিন্তা করি মনে মনে। राजा का स्वभाव, राजा का स्वभाव हम बताया कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, राजकोष बढ़ेगा, राज्य सीमा बढ़ेगा। हाँ, इसलिए बोलो ना, अर्थ के अनर्थ जानो, परम अर्थ दिव्य ज्ञान, हृदय भावो एक बार। देखो परमार्थ असली अर्थ होती है, जो अर्थ के लिए हमारा लालच भी है, हम लोग सबको लालच है। ये अर्थ आज है, शरीर खत्म और इस जिंदगी में देख सकता, अर्थ भी चला गया। आज राजा काल फकीर, बराते की खेल। आज राजा काल फकीर हो सकता, कैसे होगा पता नहीं। भगवान पाके चक्र में इस प्रकार करवा देगा, जे कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए परमार्थ करना चाहिए,
मानव जीवन, ये शरीर मानव शरीर दिया भगवान की परमार्थ करने के लिए। हमरा याद है हम जब मंदिर में आए, আমি যখন মন্দিরে এসেছিলাম আমার মায়ের খুব দুঃখ হয়েছিল, মানে মনুর মাসি, বড় মাসি। দুঃখ কি না, 6 টাকা নিয়ে নিল আর যাবোই না গুরুদেবের কাছে। 2 বছর সত্যি আসে না। তা গুরুদেব বলছে, ও বেটি বোকা, যদি ছেলে যদি বাইরে যেত পয়সা কামাতে 10 বছর আসবে না, 20 বছর আসবে না, তার বলে আনন্দ হবে। ছেলে বাইরে কাজ করে কি না, অর্থ কামাবে। আরে পরমার্থের জন্য এসেছে, অর্থের উপরে পরমার্থ, ওই জন্য সুখ হওয়া দরকার। তো हमारा मम्मी ऐसा बताया कि मम्मी का बहुत दुख हुआ। मम्मी का क्यों दुख हुआ, जो इतना बड़ा किया, बेटा चला गया और गुरुजी कुछ भी नहीं बोला, इसलिए दुख हुआ। दुख नहीं, गुस्सा भी हुआ। गुस्सा करके 2 साल आया नहीं गुरुजी के पास। तो एक दिन गुरुजी कलकत्ता चैतन्य गौरी मठ थे, बिस्तर में सो गया, हमको पूछ रहा, तेरा मम्मी तो नहीं आ रहा है? हाँ। तो उनका गुस्सा हुआ, हम यहीं पे आया था। वो बेटा गुड़वाक है, गुड़वाक। उसके बाद बोल रहा, क्यों गुड़वाक? देखो, एक बेटा जब बाहर में जा कर के कमाई करने जाएगा, देश का बाहर में, कितना कितना आनंद हो, मम्मी का, पापा का, रिश्तेदार का कितना आनंद होता। लेकिन जो परमार्थ अर्थ का ऊपर होता, लेकिन इनके इसमें गुस्सा क्यों? इस प्रकार तो नारद भी ऐसा ही बोल रहा, अर्थ के अनर्थ जानो, परमार्थ दिव्य ज्ञान, हृदय भावो एक बार। अर्थ अनर्थ होता ना, तो इस प्रकार भावना करो। परमार्थ चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए। इस प्रकार भाव किसी के पास है कि? हाथ उठाओ। इस प्रकार भाव মানে আমি অর্থ চাই না, পরমার্থ চাই, এরকম ধরনের ভাব কারো আছে? হাত তুলুন তো দেখি। সবাই হাত তুলে বসে আছে। আর যদি দেখা যায় যে এখানে সামনে একজন লোক, বড় লোক, প্রত্যেককে 2 লক্ষ টাকা দিচ্ছে, ঋণ নয়, অনুদান দিচ্ছে, 8 ঘন্টার মধ্যে যেতে হবে। আর এখানে ভগবান কৃষ্ণ এসে গেছে, কি করবেন? এখানে একজনও থাকবে, সব পালাবে। টাকাটা তো নিয়ে আগে। হ্যাঁ, দ্বারা পুত্র বন্ধুজন কেহ নাহি নিজ জন, মরণেতে কেহ নহে কার। মরণকালে কহিল रखेगा नहीं, शरीर को लेकर के शमशान में जाएंगे, जला देगा शरीर को। जिनको पसीना निकालते निकालते पाल पोस किया, वही लोग तुम्हारा शरीर को जला देगा। इसलिए बोल रहा कि मरणेते केह नाही कार। जीवन अमूल्य हलेও ক্ষণভঙ্গুর, তোমার মরণ হলে দেহটি ভাসায় জলে, সবে যাবে গৃহে আপনার। তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয় জল পিপাসা, যদি কেউ নাহি কহিল কার। झूठ का सहारा लेकर क्यों चल रहा? जब दुनिया में 2 दिन के लिए आया, ये हमारा, ये तुम्हारा, इस प्रकार विचार है, उसके बाद सब कुछ छोड़ देगा। तो झूठ का पीछे क्यों भागेगा? जो कभी दिन छोड़ेगा नहीं, उनके पास भागना चाहिए। कौन छोड़ेगा नहीं? भगवान छोड़ता नहीं। भगवान को भूल गया, माया में फांस गया, क्या करे?
सोचना चाहिए सबको। তারপর বলা কি, শুধুমাত্র জাগতিক অর্থের দ্বারা সুখ লাভের চেষ্টা করা মূর্খতা। যদি বলো লোভী সুখ জীবনে না পাই দুঃখ, অতএব অর্থ চেষ্টা করি। সেই মিথ্যা কথা রায় জীবন অনিত্য হয়, নাহি রহে শত বর্ষ পরি। ये शरीर 100 साल बाद रहेगा नहीं। जो अर्थ कमाया और सब कुछ छोड़ के जाने पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाने पड़ेगा। हाँ बोल नहीं सकता, ठीक है हम तो इतना कमाया, आधा दो हम लेके जाएगा स्वर्ग में, होगा? गोलोक वृंदावन में कम से कम 1 रुपया तो दो, ले सकता? कुछ भी नहीं ले सकता। तो इतना लालच क्यों? ये सभी माया, माया के फंदा में सब फंसा दिया हम सबको। लेकिन मुन्ना का मम्मी जो यहीं पे है ललिता देवी, उनका फंसाया नहीं। वहीं पे देखो मुख छुपा के चुप के रखा। तो मानव जीवনের प्रकृत उद्देश्य इस शरीर में, ये शरीर भगवान दिया किस लिए दिया? सोचो। অতএব জানো সার যেতে হবে মায়া পার, যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়। ये शरीर भगवान हम सबको दिया किस लिए? माया को पार करने के, माया का फंदा में फंसने के लिए नहीं, माया को पार कराने के लिए। हाँ क्यों? इस दुनिया में जो सुख ये महसूस होता, पैसा होने से सुख होगा, ऐसा होने से सुख होगा, तैसा होने से सुख होगा, ये बाद में से दुख किया जाता, बाद में दुख आ जाता। बहु इच्छा थे कि शादी करने से बाद इतना सुख होगा, इतना सुख होगा। और क्या हमारा गुरुजी और हमारा भक्ति वाला तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ऐसा बोलता था, एक लोग एक समस्या है, एक समस्या और एक समस्या को शादी किया, 2 समस्या एक हो गया, बढ़ेगा ना कम घटेगा? बढ़ेगा ना घटेगा? एक समस्या पुरुष एक समस्या और महिला एक समस्या, দুটো একসঙ্গে বিয়ে করলো, তাহলে সমস্যাটা বাড়বে না কমবে? আচ্ছা তারপর দুটো সমস্যাকে আবার একসঙ্গে থাকতে আরো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা 10টা এসে গেল, তাহলে কি হলো? সমস্যা বাড়বে না কমলো? দেখো এই তো হয়। যথা দুঃখ সুখে দুঃখ নাহি হয়, যে সুখে দুঃখ নাই সে সুখটাই সুখ। कौन सुख दुख नहीं? जो सुख प्राप्त होने से बाद दुख बिल्कुल नहीं आएगा, वो कौन सुख? भगवत सेवा सुख। भगवान का सेवा सुख जब मिलेगा, वो सुख में कहीं दुख होगा नहीं, दुख होगा नहीं। कि सेवा साधिब बोलो সেই তো অপূর্ব ফল, जाहे नहीं शोक दुख भय। बोलिए कौन साधन करना चाहिए? कौन बोल रहा? सुवर्ण सेन राजा बोल रहा। किसको? नारद मुनि को। जहां ऐसा साधन बोलो कि जहां पे शोक दुख कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या बोला देखो, ज्ञान वैराग्य द्वारा भगवत धाम प्राप्ति असंभव। ज्ञान वैराग देखो हमारा सोच बोच है कि जे कर्म करो सुख होगा, ज्ञान लाभ करो सुख होगा, जोग तप करो सुख होगा। और हमारा आचार्य लोग क्या बोला? कर्म कांड विषेर भंड, कर्म ज्ञान कांड कर्म कांड केवली विषेर भंड। अमृत बलिया जे खाय, नाना जनी भूमि मरे कदर्ज भक्षण करे।
तार जन्म अधो पाते जाए जाए कि ना। कोशिश तो बहुत कर लिया, कोशिश बहुत कर लिया, लेकिन भगवत सेवा नहीं होने से, भगवान का सेवा नहीं होने से कभी दिन किसी को सुख नहीं मिलेगा। ये बात कान खोल के सुन लो। तो देखो, केवल वैराग्य करी ताहा ना पाइते पारी, केवल ज्ञाने ते ताहा नाई। वैराग्य ज्ञानेर बले विषय बंधन गले, जीवेर কৈবল্য হয় তা ভাই। কৈবল্য মুক্তি সর্বনাশের কারণ, কৈবল্যে আনন্দ নাই সর্বনাশ বলি তাই। কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার, এ থেকে বিষয় গেল শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল, কৈবল্যের করহ বিচার। অতএব জ্ঞানী জন ভক্তি মুক্তি নাহি লন, কৃষ্ণ ভক্তি করে ন সন্ধান। বিষয়েতে অনাসক্তি কৃষ্ণ পদে অনুরক্তি, সম্বন্ধ অভিদেহ प्रयोजन। देखो हमारा शिक्षा ऐसा ही है, हम लोग वैराग्य करने के लिए पाया नहीं, और भोग करने के लिए नहीं पाया नहीं। भोगो नहीं, त्यागो नहीं, किस लिए आया? सेवा करने के लिए आया। सेवा किसको सेवा? माया का सेवा नहीं, भगवान का सेवा। भगवान का सेवा बहुत तरीका से होता है। भगवान का भक्तों का सेवा करो, भगवान का सुख होता, भगवान सेवा हो जाएगा। भगवान का नाम करो, भगवान का सेवा हो जाएगा। भगवान का सृष्टि का सम्मान दो, भगवान का सेवा हो जाएगा। हर एक तरीका से भगवान का सेवा। जब बहुत लंबा बात है, अभी तो हम तो इतना ऐसा बात कर नहीं सकता, तो जो भी हो सुनिए, फिर से सुनिए। क्या बोला? भगवत धाम प्राप्तिर एकमात्र उपाय भक्ति। सुनिए, योग नहीं, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, तो क्या किसमें हमारा असली सुख मिलेगा? हमेशा के लिए सुख मिलेगा, हमेशा के लिए सुख मिलेगा भगवान के पास जाने से। और हमेशा के लिए सुख का, क्योंकि भगवान हमेशा के लिए सुख का मूर्ति होती है, सुखेर मूर्ति भगवान। और भगवान का पावा जाए भक्ति द्वारा, और भगवान को मिलेगा किस? योग द्वारा नहीं, कर्म द्वारा नहीं, ज्ञान द्वारा नहीं, भक्ति द्वारा। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब कोई झूठ मूठ प्यार नहीं, दिल का अंदर से प्यार। अरे दिल का अंदर से प्यार का क्या? जब जिसमें फिर एक मम्मी बेटा के लिए दिल को निछावर कर देता। कोई चीज मांगता नहीं, कोई मांगता नहीं, मांगने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए बेटा बेटी को प्यार नहीं करते, सब देता देता देता। इस प्रकार भगवान के लिए करो ना, सब दो, दिल को निछावर करके दो, तो देखो क्या खुशबू क्या है, प्यार का खुशबू, आनंद, हमेशा के लिए आनंद। जीव से कृष्ण दास, भक्ति बिना सर्वनाश, भक्ति वृक्षे फले प्रेम फल। सही फल प्रयोजन कृष्ण प्रेमो नित्य धन, भक्ति मुक्ति तुच्छ से सकल। जीव कृष्ण दास और भक्ति नहीं करोगे तो सर्वनाश। क्यों? भगवान का मिलेगा नहीं कभी दिन। भक्ति से ही भगवान का मिल सकता। इसलिए भक्ति करने के लिए प्रभुपाद जी इस प्रकार परिक्रमा का माहौल बनाया। और
महाप्रभु सबको नाम करने के लिए बोला। महाप्रभु सबको बोला भगवान का सेवा करो, भक्तों का सेवा करो, यही भक्ति होता। भक्ति करो, प्रेम मिलेगा। भगवान का सेवा करने के लिए पहले भक्तों का सेवा करना चाहिए। भक्तों का सेवा करने से शुद्ध भक्ति मिलेगा, शुद्ध भक्ति से शुद्ध नाम होगा, शुद्ध नाम से प्रेम मिलेगा। बस यही सरल हिसाब है, आसानी से प्रेम मिलेगा। चैतन्य भक्त समझ में आया कि पूरा? अच्छा, जो भी हो सुनिए। कृष्ण चिदानंद रवि, माया तार छाया छवि, जीव तार किरानुकान। कृष्ण चिदानंद रवि, कृष्ण चिन्मय जगत का सूरज। सूरज में क्या उजाला देता, और माया क्या देता, अंधारा देता। अंधारा अच्छा लगे ना उजाला अच्छा लगे? बोलिए बोलिए, अंधकार ভালো লাগে না আলো ভালো লাগে? হ্যাঁ, তাহলে কি করবেন? অন্ধকারে নাচবেন, অন্ধকারে চলবেন, আলোতে চলবেন? কোনটা? হ্যাঁ, আলো হচ্ছে চিদানন্দ রবি কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণের পিছে পিছে ভাবতে হবে। হ্যাঁ, माया तार छाया छवि, जीव तार किरण अनुकान, जीव तार चितकान। इतना छोटा मशीन से दिखाई नहीं देता। हाँ, तो क्या करे? उजाला में भगना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने के लिए क्या बोला? हरि नाम करो। तो तटस्थ धर्मेर बसे, जीव यदि माया पर्शे, माया तारे करे बंधन। तटस्थ शक्ति जीव, तट मतलब परमार्थ जगत और भौतिक जगत दोनों का जो मिलन हुआ और तट कहलाता। वहीं पे हम सबको पुदा दिया। कौन? भगवान दिया। तो क्या हुआ? वहीं से माया का बहुत अच्छा लगा, भाग गया, आ करके फंस गया, माया फंसा लिया। अभी भाग अच्छा है, शुद्ध भक्ति का स्वाद थोड़ा सा मिला, लेकिन संग चाहिए। संग नहीं होने से कभी दिन शुद्ध भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संगो। भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, कृष्ण भक्ति का आगे बढ़ाने के लिए साधु का संग चाहिए। साधु का संग मतलब क्या? साधु का संग मतलब साधु का पास में बैठने से नहीं होगा। साधु जो बता दिया जिंदगी में पालन करने से साधु संग होता। कटमल नाम सुनो, देखा तो कहाँ पे रखता? साधु का बिस्तर अंदर में रुकता। किस लिए रुकता? इसलिए रुकता, बोलो, खून पीने के लिए। ये साधु संग नहीं करते। मैंने बोला खटमल को क्या बोला? बोले बांग्ला की बोले ছাড় পোকা। সাধু সঙ্গ করে তো নাকি? সাধুদের বীজ না থাকে, কি জন্য থাকে বলুন? হ্যাঁ, এই জন্য সাধু যেটা বলছে, যেমন পরমার্থী মানে যেটা বললেন, কীর্তন করলেন, হ্যাঁ, শুনো না গৌর কথা। अरे सुनो ना ना बाबा। हाँ, तो अभी क्या जो बताएगा वही करना चाहिए जिंदगी में, तब साधु संग होगा। যেটা বলা হচ্ছে সেটা যদি করা যায় তবেই সাধু সঙ্গ হবে। কৃষ্ণ বহির্মুখ যেই মায়া পড়ছি জীব সেই মায়া পড়ছে কর্ম সঙ্গ পায়। আমাদের কর্মে কেন ব্যতমতি? কেন আমরা কৃষ্ণকে বহির্মুখ মানে ভুলে গেছি, এর জন্য মায়াকে
আঁকড়ে ধরেছি। শক্তি কখনো চুপচাপ বসে থাকবে না। যদি ভগবত সেবা না করেন माया सेवा करती ही হবে। एनर्जी जो है ना, शक्ति जो है वो चुपचाप नहीं रहेगा। शक्ति लेकर के भगवत सेवा नहीं करोगे तो माया का फंदा में फंसा देगा माया देवी। हाँ, माया जाले भूमि मोरे कर्म ज्ञाने नहीं तरे कष्ट नाश मंत्र न कराय। माया जाल ऐसा है, घूमते घूमते कभी घुमाएगा, दौड़ कराएगा। घोड़े को जिस पर दौड़ कराता ना उस पर दौड़ कराएगा, चलो चलो चलो। कभी कभार जलचर पानी हो जाओ, कभी कभार केवल कीड़ा पकड़ा हो जाओ, कभी कभार पेड़ पौधा हो जाओ, कभी कभार जानवर हो जाओ, कभी कभार सब पक्षी हो जाओ। और मानव शरीर मिलने से बाद ये तो मौका है, भक्ति करने का तो मौका है, लेकिन नहीं करोगे तो क्या होगा, फंसा जाओ। ये जन्म मिलने से भी लाभ नहीं उठा पाओगे। इसलिए भक्ति करने के लिए इस प्रकार साधु के पास जाना चाहिए। साधु महाराज देखो ना कितना, देखो ना नरसिंह भगवान का मंदिर में जाकर कितना नाचेगा। नरसिंह भगवान का आनंद लेकर के, धनुष बाण लेकर के, कभी कभार कुठार लेकर के, सब कुछ देखो ना क्या सब तोड़ ताड़ कर देगा। माया जितना फंदा है ना सब तोड़ ताड़ कर देगा। आंखों देखोगे ना कभु कर्म आचराय अष्टादि जोगमय कभु ब्रह्म ज्ञान आलोचन कभु कभु तर्क करे अवशेषे नहीं तरे नहीं माने आत्मतत्व धन। ये सब अच्छा है, कখন कर्म कখন अष्टांग योग, ये सब कुछ भी काम नहीं होगा। भक्ति करो, भ्रमिते भ्रमिते जब भक्त जन संग हबे तबे श्रद्धा लोभिबे निर्मल। साधु संगे कभु भजी हृदय अनर्थ त्याजी निष्ठा लाभ करे सुविमल। तो হবে না, এরকম করে ভুল হবে না, অনেক তো বড়, তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছি, পরে ভালো এরকম করে হবে না। ভজিতে ভজিতে তবে সেই নিষ্ঠা রুচি হবে, কমে রুচি হবে আসক্তি, আসক্তি হইবে ভাব, তাহাই তবে প্রেম, তাও হবে প্রেম লাভ। এই क्रमे হয় शुद्ध भक्ति। ये भक्ति का जितना सब श्रद्धा से, साधु संग से, भजन क्रिया से, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा से, रुचि से आसक्ति से भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। इस प्रकार इतना ऊंचाई में भक्ति है। ये इतना आसानी से तो हमारा कोशिश में हो नहीं सकता, भगवान कृपा से आसानी से हो सकता। भक्तगणेर अनुगत्य नवदा भक्ति जाजन करा करले कृष्ण प्रेम लाभ सम्भव है। श्रवण कीर्तन मति सेवा कृष्णार चरणति दास्य शक्य आत्मनिवेदन। नवदा साधन यही भक्त संग करे जेई সেই লাভে कृष्ण प्रेम धन। धमवासी कर्तव्य, धमवासी क्या कर्तव्य है, तुम्ही राजा भाग्यवान नवद्वीपे तब स्थान धमवासी तब भाग्योदय। साधु संगे श्रद्धा पे कृष्ण नाम गुण गे प्रेम सूर्य करा उदय। देखो एक धाम में रहते हुए दुनियादारी करना ठीक नहीं। क्या बोला, साधु संगे जो लोग नवद्वीप में रहने का, एक रात रहने का मौका मिल गया, उनका भाग अच्छा है। लेकिन भाग अच्छा को सही कराने के लिए साधु के पास जाना चाहिए, साधु का कथा सुनना चाहिए। तो नारद मुनि के पास सुवर्ण सेन के पास नारद मुनि आए
और नारद मुनि का पूरा दिमाग पूरा रूप से परिवर्तन हो गया। देखो नारद मुनि कर्तृक गौरांग अवतारे सूचना धन्य कली आगमने हेता कृष्ण लये गणे श्री गौरांग लीला प्रकाशिबे সেই গৌর নাম লবে তাতে কৃষ্ণ কৃপা হবে ব্রজে বাসই তো করিবে। नारद मुनि बोला राजा सुवर्ण सेन को कली युग में धन्य कली युग धन्य कली क्यों यहीं पे भगवान आ करके सबको प्रेम देगा, विचार नहीं करेंगे। एक इनका पास क्या है, विचार नहीं करेगा, सबको देगा। इसलिए गौर के बाद दिए कृष्ण कृपा लाभ दुष्कर गौर नाम नालैया जय कृष्ण भजे गिया সেই কৃষ্ণ বহু কালে পায় গৌর নাম লয় যেই সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই অপরাধ নাহি রহে তাই। नारद मुनि उपदेश दे रहा इस प्रकार गौर नामेर प्रताप বলিতে বলিতে मुनि অধৈর্য হয় অমনি नाचिते लागिल गौर बोली। नारद मुनि इस प्रकार बात बताते बताते नाचने लगे, गौर नाम लेकर नाचने लगे, गौरांग गौरांग करके नाचने लगे। जिस प्रकार हम लोग काल बताया था ना, शिव जी महाराज नाचने लगे काशी में, गौरांग गौरांग गौरांग। पार्वती देवी बोला क्या क्या गौरांग क्या, बताओ बताओ सही बताओ। और जब बताया तो पार्वती देवी लालच होकर के आ गया गौर धाम में, गौरांग का दर्शन मिला। कितना हाँ लालची होने से, लालच नहीं होने से कुछ नहीं हो सकता, कोई प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। लालच होना चाहिए, हमारा चाहिए प्रेम। भक्तेर कृपाते प्रेम लाभ संभव এই সব বলিতায় নারদ চলিয়া যায় প্রেমোদয় হইল রাজার। গৌরাঙ্গ বলিয়া নাচে সাধু সহিতে প্রেম যাচে विषय वासना घुचे तार। देखो इतना दिन बूढ़ापन हो गया और सुवर्ण सेन का इतना लालच था भौतिक चीज को बढ़ाने के लिए, राज को बढ़ाने के लिए, राजकोष को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज नारद मुनि का कृपा से, साधु का कृपा से सब लालच वो लालच चला गया। अभी जो लालच आया जो हमेशा के लिए सुख देगा वो लालच, वो क्या लालच है? प्रेम प्राप्त करने का लालच। प्रेम प्राप्त माने प्रेम लाभ करबो, इस प्रकार एरকম लोभ হওয়া দরকার। लोभ না হলে কখনো প্রেম পাওয়া যাবে না। सब স্বপ্নে রাজার গৌর দর্শন, গৌর গদাধর দর্শন। নিদ্রাকালে নরবর দেখে গৌর গদাধর সপার্ষদে তাহার অঙ্গনে। हाँ गौर गदाधर भजनेर विग्रह, भजन विग्रह गौर गदाधर। जखन गौर गदाधर एकसाथे तখন राधा कृष्ण और गौर विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया गौर नारायण। भजन विग्रह लादिनी शक्ति स्वरूपाय श्री गौरांग श्री दशते भक्त शक्ति स्वरूपायो गदाधरो नमस्तुते। लादिनी शक्ति आनंद देने वाले, महाप्रभु आनंद देने वाला कौन है? गदाधर। जो भी हो ठीक ढंग से तत्व को ले करके भजन करने से, भगवान का सेवा करने से जरूर मिलेगा। नाचे ना नाचे हरे कृष्ण बोली तो राजा क्या करने लगे? नाचे हरे कृष्ण बोली करे सबे कोलाकुली सुवर्णपति माँ गौर सने। सपने देख रहा, सपनों में देख रहा, इस जगह पे गौर गदाधर आ गया और राजा गौर गदाधर को लेकर के नाचने लगे। कीर्तन नर्तन करते करते गला लगा रहा। निद्रा भंगे राजार अवस्था दैववाणी
নিদ্রা ভঙ্গে নরপতি কাতর হইল অতি গৌর লাগি কর এ কন্দন দৈববাণী হইল তাই প্রকট সময় যারায় হবে তুমি পার্শ্বদে গণন তুমি আমার পার্শ্বদ হবে दिव्यवाणी हलो माने आकाशवाणी आसमान से वाणी आ रहा हे राजा चिंता मत करो तुम हमारा पार्षद बनोगे कली युग में सत्य युग में हुआ तो वही राजा बाद में क्या हुआ बुद्धिमंत खान क्या बोला बुद्धिमंत खान नाम पाइबे से गुणधाम से भी गौरांग श्रीचरण दैववाणी काने शुनी स्थिर हইল नरमणि करे तबे गौरांग भजन शिवासेर नारदावेश नित्यानंद कथा शेषे नारदेर थक्तावेश व्यास हইল अचेतन महाप्रमवेश तबे गौर नामामृत सबे भूमे लोटे श्रीजीवे तखन जब हो इस प्रकार व्याख्या इस पे है। अभी हम लोग जो কে মুভি দেখছিল बताए ठीक है सुनिए अभी आगे जाने होगा निशिकापल्ली में जाकर के हमारा साधु महाराज नर्तन कीर्तन करेंगे और बमन महाराज परमार्थी महाराज और हमारा पद्मनाभ महाराज से बताएंगे कथा वहीं पे सब कथा होगा महाराज जी कथा उसके बाद प्रसाद होगा पूजा खत्म हरे कृष्णा।